functional group of aldehyde with the prefix and suffix. Functional group prefix suffix. Formyl and Al. Formyl Yes, and what's your name? आपका नाम क्या? Who's speaking? I should know that. Aryan. हाँ, speak Aryan. Aryan, speak. Functional group of aldehyde, prefix and suffix. All the prefix. Come on. Formyl and aldehyde. Al. Formyl and Al. Al. What is the functional group of aldehyde? Functional group. You have to speak CHO. What is the functional group of aldehyde? CHO. Or you can say C double bond OH. C double bond O, single bond H, या फिर CHO. दोनों में से एक नाम चलेगा. Formyl and Al. Okay. Next question is C double bond O is a functional group of carboxylic acid. गलत जवाब. Ketone. Ketone. Look, sir, it is C double bond O is a functional group of what? Ketone. C double Keto. Screen. Third video pause. The screen is paused. ये स्टूडेंट एक मिनट सर पॉज हो गया पॉज देख रहे होंगे सर. Okay, sir, done. I want prefix and suffix of ketone. Oxo and 1. Oxo N1. Prefix is oxo and suffix is ONE1. Okay, next is name the functional group which is having suffix OIC acid. Suffix OIC acid. Carboxylic acid. Carboxylic acid. उसका prefix क्या है? Carboxy. Carboxy. COOH. COOH. Double OH. मतलब you are understanding and you are remembering this. You have to memorize this parts. Okay. This form is same. I have set one practice paper, assignment paper. I will share with your respective teachers so they can share you. मतलब इसी तरह से एक मैंने प्रैक्टिस पेपर बनाया है जिसमें आपको फिल अप करना है. ठीक है, तो पहले हम इतना ही करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे. On the board you can see I have written some functional group. I'll explain it once when I'll complete this table. 1 minute, then I'll explain you what I've written. This is you also can start writing in your notebook. You'll also title क्या देना है इसका? The title of this is the order of priority of the functional group. The order of priority of functional group. Okay. ये क्या लिखा है यहाँ पर on the board? I have shared the order of priority. Means the highest priority is given to carboxylic acids. उससे पहले एक और चीज, जो फंक्शनल ग्रुप के पास सफिक्स होता है उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, और एंड द फंक्शनल ग्रुप which do not have suffix, the functional group which do not have suffix are getting the least priority. जैसे alkyl halides are also called as haloalkanes.
You are familiar with the halogens, na? Which are the halogens? FCl, Br and I. इनका ऑर्डर प्रायोरिटी बहुत कम है क्योंकि इनके पास क्या है, सिर्फ प्रीफिक्स ही है, FCl/R. नाइट्रो मतलब NO2. एंड अल्काइल हमने देखा था, थर्ड वन इज अल्काइल. अल्काइल हमने देखा था मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल. तो इन सब की प्रायोरिटी कम है क्योंकि पास सफिक्स नहीं है. ठीक है. सो आई हेल्प यू टू रीड दिस. द वेरी फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, COOH. सेकंड वन इज सल्फोनिक एसिड, SO3H. SO3H सल्फोनिक एसिड. मतलब जो एसिड वाला पार्ट है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, जो एसिड वाला पार्ट है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा. आफ्टर दैट देखो एसिड का डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ये कैसे बनता है वो बताता हूं, यहाँ पर देखेंगे. पे अटेंशन एवरीबॉडी हियर. कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH ना. कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH. तो दो मॉलिक्यूल्स लेता हूं मैं, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, दो मॉलिक्यूल. अब जब इसको हीट करेंगे ना, इसको हीट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा. डेरिवेटिव मतलब इससे डिवाइड होगा. ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर, H2O गया. सो व्हाट इज रिमेनिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बराबर है. और एक O कॉमन हो. ये समझ में आ रहा है आपको? क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल हीट करेंगे तो हमें ये फंक्शनल ग्रुप मिलेगा. तो वर्ड लिखा है एसिड एनहाइड्राइड. एसिड एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या होता है कि दिस फंक्शनल ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, एसिड. एंड व्हाट यू मीन बाय द वर्ड एनहाइड्राइड, फ्री फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल. जिसमें वाटर एब्सेंट होता है उसको एनहाइड्राइड. ये समझ में आ रहा है एसिड एनहाइड्राइड एवरीबॉडी, यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, sir. हां Repeat again. Sir, repeat again. हाँ रिपीट करता हूं मैं एक बार आपस में. See, you all are familiar with the carboxylic acid. C double bond O, single bond OH, carboxylic acids. एक मॉलिक्यूल एक और लेते हैं, C double bond O, single bond OH. इसको हीट करेंगे. जैसे इसको हीट करेंगे यहां से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा. H2O गया, H2O is thrown outside. Now what is remaining? See clearly. ऊपर C डबल बॉन्ड O, नीचे C डबल बॉन्ड O, और एक O बचा है ना, बाकी H2O तो गया. तो एक O दोनों के लिए कॉमन हो जाए. तो ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया ये यहां से मिला ना. ये ओरिजिनल क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड. ओरिजिनल क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड. ये डिराइव हुआ है इससे, ये डिराइव हुआ इस एसिड से. तो ये एसिड का डेरिवेटिव. बट इसमें क्या एब्सेंट है, वाटर मॉलिक्यूल एब्सेंट है. द मॉलिक्यूल which do not have water is called as anhydride. The molecule which do not have water is called as anhydride. Hence the name is acid anhydride. अभी समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. मतलब मुझे आपको ये बताना था कि ये एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल आया कैसे और नाम कैसे हुआ. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड बिकॉज obtained from acid and free from water. So molecules which are free from water are called as anhydride. तो उसका डेरिवेटिव हो गया ना, इसलिए उसका एसिड से प्रायोरिटी कम है. किसका डेरिवेटिव हो गया, ये एसिड का. एसिड का डेरिवेटिव है इसलिए उसकी प्रायोरिटी कम हो गई.
समझ में आ रहा है ना अभी? Yes. Okay. So we'll move further. Acid anhydride. This is esters. This we have seen in 10th standard. Ester. What are esters? You all know? Esters are substances which are having fruity odor present in them. मतलब जिसमें फ्रूट्स का टेस्ट होगा. तो हमारे घर पे जितनी भी रेडीमेड चीजें आती हैं, जैसे केक आ गया सपोज, तो केक मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी, किसी को चॉकलेट फ्लेवर, तो दे आर नॉट एडिंग पाइनएप्पल, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी इन देम, बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर adding esters to them. So all the fruit juices भी लाते हैं हमारे घर पे रेडीमेड बाहर से, वो एक एक 2-2 3-3 महीने तक खराब नहीं होता है, और हमारे घर पे मम्मी फ्रूट जूस बनाती है तो within few hours it gets having foul smell, bad taste. So why? Because it is prepared from using esters. Let us see what is ester. Ester भी दिखाने कैसे होता है. Have a look here everybody. ईस्टर्स कैसे बनते हैं वो भी दिखा देता हूं मैं. ये RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH. Now what I will do here is I will replace this H by an alkyl group. This H by any alkyl group, that is ethyl methyl propyl. So in short, esters are derived from acids. Esters are derived from acids. Okay? और अगर ये समझ में आ रहा है esters वाला पार्ट, और आप मेरी भाषा में लर्न करोगे तो मैं ऐसे बोलता हूं, esters are sisters of acid. What? Esters are sisters of acid. क्यों? बहनें समान होती है ना, बहनों का जो नेचर होता है वो समान होता है, इसीलिए ये भी सेम है. एग्जाम्पल दिखाता हूं. कल अपन एक एग्जाम्पल किया था. Look at this. Come on, speak the name of this compound. Acetic acid. Acetic acid. Acetic acid. Acetic acid. It is a carboxylic acid. ना. अब मैं क्या करूंगा, उथल पुथल कर दूंगा. CH3 की जगह पे H, H की जगह पे CH3. Yes. So now what? H, COO, CH3. So H and CH3 are interchanged. H and CH3 are interchanged. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है अभी. ये क्या हो गया? COO. और ये CH3 अल्काइल ग्रुप है ना. अल्काइल ग्रुप का मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अल्काइल ग्रुप को? R. तो ये हो गया R. तो बन गया ईस्टर. तो हमने क्या किया? एसिड से ईस्टर बना दिया. इसीलिए हम ऐसे बोलते हैं ईस्टर्स आर सिस्टर्स ऑफ एसिड. अभी समझ में आ रहा है टॉपिक? हाँ या ना? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. श्योर सबको अभी तक केस क्लियर नहीं आ रहा, मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा है. देखो क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ. ईस्टर्स पे क्या होता है, हाँ अल्बेपिल आयन जो पता चल रहा है वो फीडबैक के हिसाब से. CH3COOH, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबको समझ में आ रहा है क्योंकि COOH क्लियरली दिख रहा है. R का मीनिंग होता है अल्काइल ग्रुप. तो CH3, C2H5, C3H7, this all are alkyl group. CH3 कौन सा है? मिथाइल, Methyl. प्रोपाइल, ब्यूटाइल. ऐसे अल्काइल ग्रुप नहीं मार सकते. इतना समझ में आ रहा है? R अल्काइल ग्रुप होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल. ओके. अब हम क्या करेंगे, जो H है ना एसिड का, उसको रिप्लेस करेंगे किसी एक अल्काइल ग्रुप से. उतना ही करना है. जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का H होता है, हमें उस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के H को किसी भी एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करना है. तो जैसे ये CH3COOH है,
मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ CH3COO CH3 दिया मैंने, तो ये भी क्या हो गया, ये this is also what ester, because there is what COO and alkyl group is present. Alkyl Sir, IUPAC name. yes, yes. Please repeat. My dear, repeat. Sir, IUPAC name. नहीं, आईयूपीसी में पढ़ा रहा हूँ, बाकी आईयूपीसी पढ़ाना, पर मुझे आपको ये बताना है कि आपको ईस्टर आइडेंटिफाई करते आना चाहिए पहले, उसका नॉमेनक्लेचर बाकी है। आपको समझ में आ रहा है ना ईस्टर्स कैसे होगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको फर्स्ट। आईयूपीसी नेम इज स्टिल रिमेनिंग, सो व्हाट आई हैव टू मेक यू अवेयर, आई वांट टू मेक यू अवेयर दैट हाउ एसिड एंड ईस्टर्स आर डिफरेंट। सो एसिड्स में क्या होता है, COOH होता है, H कंपल्सरी आएगा तो ही वो एसिड, और ईस्टर्स में क्या होता है, in place of H there should be CH3 और alkyl group R, कोई भी R, CH3 C2H5 C3H7 C4H9, कोई भी alkyl group होगा other than H तो ईस्टर्स, ठीक है ना, तो इसलिए ये ईस्टर्स। फिर असाइल क्लोराइड COCl, उसके बाद अमाइड NH2 होता है तो अमाइन, NH2 अमाइन, बट CONH2 हो गया तो अमाइड IDE, पहले फर्क है देखो। देन नाइट्राइल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये तो हमने कल किया था। ये देखो, ये और ये सेम लग रहा है, ये अल्कोहल है, यहां पर भी OH है, बट आगे क्या लिखा है मैंने, AR। AR stands for aromatic ring, AR stands for aromatic ring, मतलब बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग के साथ में OH डायरेक्टली है तो वो फिनॉल है, और अगर अल्कोहल का जो O है, if is replaced by S, अल्कोहल का O is replaced by S, it is called as thiol, it is called as thiol. How to pronounce? Thiol. S stands for thigh, alcohol का suffix OL, so thiol. NH2 amine, अभी कैसे याद रखने का इसमें, जिसमें भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन का है उसकी पहले प्रायोरिटी देखो। फिनॉल का ऐसे होता है, इन दोनों स्ट्रक्चर में फर्क है ना, ये कैसा है, अल्काइल और ये अल्कोहल, ये अल्काइल अल्कोहल, बट यहां पर कौन सा रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, और फिर OH ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग है और OH है, तो ये अल्कोहल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। सो अल्कोहल में क्या होता है, हमेशा ये ग्रुप प्रेजेंट होगी, अल्काइल ग्रुप्स, बट फिनाइल में बेंजीन रिंग कंपल्सरी होगा, तो हम उसे फिनॉल बोलेंगे। Clear? Clear the difference between alcohol and phenol? Yes. Thank you. Sir, please explain again. Once more. What? When the OH group is directly attached to aliphatic ring, aliphatic chain, aliphatic का मतलब open chain, then it is called as alcohol. But if OH group is directly attached, if OH group is directly attached to aromatic ring, aromatic मतलब आपको दिमाग में बेंजीन फिट करना है, तो is directly attached to aromatic ring, then it is phenol. तो यहां पर देखेंगे first this one, OH group is attached to what, alkyl group, ये purely alkyl group है ना, that's why this is called as alcohol.
This is called as alcohol. यहां पर ये जो बेंजीन रिंग है उसके साथ में डायरेक्टली OH है, तो एरोमेटिक रिंग के साथ में OH है, तो ये आपका हो गया फिनॉल। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। सो सेम थर्ड स्ट्रक्चर इज अल्कोहल और फिनॉल। Methyl phenol. नहीं, आई वांट द ओनली आंसर वेदर इट इज अल्कोहल और फिनॉल। थर्ड स्ट्रक्चर phenol, अल्कोहल, एक बच्चे ने आंसर दिया फिनॉल, बाकी सब बच्चे रिमेनिंग 90 Alcohol. 92 Alcohol. 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 अल्कोहल। ठीक है, सो स्टिल यू आर नॉट क्लियर। क्या बोला था मैंने कि इफ OH group is directly attached to benzene ring, OH is directly attached to benzene ring, it is called as phenol। तो यहाँ पर OH है, तो बेंजीन रिंग से तो डायरेक्टली है ना, दूसरा कुछ भी होने दो, दूसरा कुछ भी होने दो, बट वो OH बेंजीन के साथ में डायरेक्टली अटैच है या नहीं है, तो वो फिनॉल हो गया, तो वो फिनॉल हो गया। क्लियर? यस सर, Yes, sir. अभी फोर्थ स्ट्रक्चर में देखो, Alcohol. डायरेक्टली अटैच्ड है Alcohol. नहीं, No. नहीं है, Alcohol. हाँ, तो दैट्स व्हाट इज अल्कोहल। अभी समझ में आ रहा है? अल्कोहल, फिनॉल, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनके नाम में बातें बताऊंगा आपको, नाम अभी बाकी बताना है आपको, पहले आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, इसलिए वो सब बता रहे हैं आपको। नेमिंग स्टिल आर रिमेनिंग। So students, please note down these topics. और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं आपको नोट शेयर कर रहा हूं, तो उसमें आ जाएगा आपके पास। तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप्स लर्न करने हैं और इनके प्रीफिक्स सफिक्स भी लर्न करने हैं, साथ में ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। जैसे हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में मैथ्स पढ़ने से पहले टेबल स्टडी किया था ना, 20 तक टेबल हम सबको लगभग आते हैं, तो टेबल्स लर्न किए थे। तो वैसे ही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको अच्छे से आने के लिए हमें ये टेबल्स लर्न करने पड़ेंगे। तो क्या क्या? फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ये आपको एकदम परफेक्ट आना चाहिए, रट्टा रट्टाया एकदम पोपट की तरह याद होना चाहिए, तो ही आपको नेमिंग वगैरह सब समझ में आएगा। Because yesterday I made you learn 5 functional group, and in that I taught only the suffix, prefix बाकी था। So when you have to use prefix, वो इधर से मालूम पड़ेगा। ठीक है? Shall I clean the board? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. So yesterday Yes, sir. we studied functional groups. Today we'll study other 5 functional groups now. Esters. Functional group is अरे डब्बा इकडे आहे पोपो. please students, if your brother sisters are sitting nearby and making noise, then you mute your mic. Dimple. Yeah, ये functional group, this is functional group, structure, prefix, suffix and pattern. ठीक है ना? So first functional group that we study is ester, E-S-T-E-R. स्ट्रक्चर है उसका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, या फिर हम उसको COOR भी लिख सकते हैं। उसका प्रीफिक्स है अल्कोक्सी
carbonyl. The prefix is alkoxy carbonyl. या फिर इसको वर्ड वर्ड में लिख सकते हैं, दोनों कंबाइन करके कार्बोक्सी. प्रीफिक्स इज अल्कोक्सी कार्बोनाइल, या दोनों को चिपका दो, कार्बोक्सी. Suffix of this compound is O8. Suffix of this compound is O8. Pattern. Alkyl. सर क्या लिखा है वो? हाँ वो चैप्टर है ना, पैटर्न बाद में बता देते हैं. तो इसका पैटर्न निकाल लेता हूँ. पैटर्न में इसका पैटर्न क्या आएगा? अल्काइल अल्कानोइड. पैटर्न इज अल्काइल अल्कानोइड. ये 6 हो गया ना, हम कर पाए 7. असाइल क्लोराइड, C double bond O Cl. C double bond O Cl. Prefixes. ये हैलो, Cl ना, Cl मतलब हैलोजन, तो प्रीफिक्स इसका आएगा हैलो. और कार्बोनिल ग्रुप से फॉर्माइड, हैलो फॉर्माइड. सफिक्स OYL हलाइन, या फिर OYL क्लोराइड लिखा तो भी चलेगा. तो पैटर्न कैसे हो जाएगा? अभी सफिक्स चिपकाने का है. नाम क्या है? अल्केन होता है ना. हाउ लुक स्टूडेंट्स, हाउ लुक. पैटर्न कैसा है? अल्केन. अब कल बताया था ना आपको मैंने, सफिक्स क्या करना है? What to do suffix? How to use? E निकाल. Should be replaced by the suffix ना. Suffix. तो E की जगह पे क्या आ जाएगा? OYL हलाइन, अल्कानोइड हलाइन. ठीक है ना, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझ में आएगा. सर यस. हेलो और फॉर्मल दोनों साथ में यूज करना है. हाँ, ये प्रीफिक्स है. हेलो फॉर्मल प्रीफिक्स है, क्योंकि Cl और कार्बोनिल ग्रुप दो साथ में आ रहा है ना इसके, तो इसलिए हेलो फॉर्मल ये प्रीफिक्स है. Alkanamide. Very good. I was looking for the answer only. Good. So acidamide. Formula is C double bond O NH2. आप इसको सिर्फ अमाइड बोलोगे तो भी चलेगा. एसिड स्किप कर दोगे, अमाइड वर्ड भी चलेगा. इसका प्रीफिक्स कैसा है? कार्बामोइल. कार्बामोइल. सफिक्स अमाइड. इसलिए E रिप्लेस हो गया वर्ड अमाइड से, अल्केन अमाइड. C triple bond N. अरे C triple bond N. इसका फंक्शन बताइए. नाइट्राइल. इसका प्रीफिक्स साइनो और सफिक्स ही नाइट्राइल है.
Pattern. Alkene nitrile. Very good. इसको है ना हम जनरल भाषा में साइनाइड भी बोलते हैं, साइनाइड भी बोलते हैं। आपने साइनाइड वर्ड सुना है स्टूडेंट्स? यस सर। साइनाइड, यस, जहर है वो। बोलना। सर साइनाइड जहर है। एक्सलेंट आंसर, वेरी गुड। हाँ, हमने मतलब मेरा फेवरेट है क्राइम पेट्रोल वगैरह, तो उसमें सीरियल्स में देखने मिलता है, या फिर कोई भी डिटेक्टिव सीरियल्स में बराबर है जो वी हैव वीसील दिस साइनाइड, मतलब वो आतंकवादी वगैरह होते हैं, उनके गले में ताबीज होता है, जब उनको पकड़ा जाता है तो क्या करते हैं, ताबीज मुंह में डालते हैं और ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं। तो उनके ताबीज में क्या होता है, ये पोटेशियम साइनाइड। रिंग में भी रहता है हाँ ना? रिंग, हाँ, रिंग में भी होता है, रिंग में भी होता है, इसमें भी होता है। तो उसको चूस कर उसको डालकर फटक ऑन द स्पॉट मर जाता है, आपने देखा होगा बहुत बार। तो ये क्या होता है, कुछ नहीं बट पोटेशियम साइनाइड। सो पोटेशियम साइनाइड इज अ हाईली डेंजरस कंपाउंड। इसका इसीलिए टेस्ट हम किसी को पता नहीं है। एक साइंटिस्ट ने अपनी जान पे खेलकर एस लिखा था, एस लिखे वो फिनिश, एस लिखा उतने में फिनिश हो गए। बोलो तो मतलब कितना डेंजरस होगा ना। सार हो सकता है, स्वीट हो सकता है, सॉल्टी हो सकता है, क्या पता क्या है। ऐसा कर सकते सर, हाँ, यस। ऐसा कर सकते 2-3 जन को खड़े रखे कि वो लोग एक एक वर्ड बोलेंगे। अरे वो मर जाएंगे ना, कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। बरोबर है सर। ठीक है ना, इसलिए दीक्षित को बताएगा और फिर जाएगा। दीक्षित क्या बोल रहे हैं? तेरे नाम पे वो साइनाइड का फिर टेस्ट लिखा जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर। चार टुटोरियल का नाम ऊंचा हो जाएगा। हाँ, चार टुटोरियल का नाम ऊंचा हो जाएगा क्या सर? नहीं नहीं भाई। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करवाते शैटरडेज वाले, ये तो बदनाम हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंट नाम की बच्चों की जान ले ली। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ, Amines. Functional group is NH2. इसका प्रीफिक्स अमीनो, सफिक्स अमाइन। तो पैटर्न क्या है? Alkanamine. वेरी गुड। Alkanamine. So we'll learn the structures of this today. सर I अमाइन hope all the students are कल enjoying किया and था understanding the topics. सर अमाइन कल किया गया था। Done? सर हम्म, सर माइन क्या हो हुआ? गया था। अमीन हो गया है? हाँ सर, लास्ट लेक्चर में हो गया था। हाँ सर हो गया था। हाँ, तो दूसरा ले लेते हैं हमारे पास बहुत है। नाइट्राइल्स हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो हमारे पास बहुत है अभी तक। तो वी विल टेक वन ईस्टर्स हो गया, एसिडामाइड्स, नाइट्राइल्स, विल टेक केयर एसिड एंड नाइट्राइल। सर 7th वन का प्रीफिक्स क्या है? किसका? 7th वन का 7th one, haloformyl. Prefix is haloformyl. ओके सर। Acid anhydride. C double bond O. Acid anhydride. C double bond O. O. C double bond O. O. This can also be written as C double bond O 2 times with the O. This can also be written as C double bond O 2 times. More better write down. C double bond O 2 times with the O. No prefix. Suffix is OIC anhydride.
Alkanoic anhydride. Very good. Alkanoid anhydride. तो अभी हम लोग इनके बारे में स्ट्रक्चर्स देखेंगे. तो आई होप एवरीबॉडी हैज नोटेड डाउन दिस. Okay, I'll wait 2 minutes, so I'll take your time and note down. Have you copied everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we go for the structures. So first thing you have to identify is the functional group. So you can see here is COCl. कीटोन एंड हैलाइड. हाँ, मुझे लगा ही था ऐसा कुछ आंसर आएगा. It is not ketone and halide, but it is what? Acyl chloride. ये क्या आया? COCl है ना? ये किसे? ये R, ये CO, ये Cl, ये COCl है. इसलिए ये पैटर्न कैसा होगा? ये कैसा है? असाइल क्लोराइड. ये कीटोन और हैलोजन नहीं है. कीटोन हैलोजन एक साथ आ गया तो आप तो ऐसे बोलोगे सर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये तो आप ऐसे बोलोगे सर कीटोन और अल्कोहल है ना? तो ये कीटोन अल्कोहल नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो उसी तरह से ये COCl जब साथ में होता है तो ये कीटोन और अल्कोहल नहीं होता है, कीटोन और हैलाइड नहीं होता है, ये असाइल हैलाइड या फिर हम इसे असाइल क्लोराइड बोलेंगे. ठीक है ना? Now we go for the numbering of carbon atoms. So 1, 2, 3. 3 carbons are in the longest continuous carbon chain. 3 means what? प्रोपेन. Propane. Very good. 3 means what? Propane. Now you have to replace the suffix. Replace the E by the suffix. So you have halide. very good. So E will ऑयल be हैलाइड. propanoid chloride. Propanoid chloride. Clear? Everybody? समझ में आ रहा है? यस सर. Now bond line. कितना कार्बन एटम्स बोला? 3. सो जहां पर मार्कर रखा वो फर्स्ट, सेकंड, क्या? जहां पर आप मार्कर रखो वो आपका फर्स्ट कार्बन, फिर सेकंड, फिर थर्ड.
अब इस कार्बन पे क्या है, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और फिर आगे क्या है Cl। बॉन्ड लाइन एक बार वापस देखते हैं, ठीक है ना। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3। Where you keep your pen, that becomes your first carbon. You draw the line second and again draw the line third. On first carbon atom, it is C double bond O. So you draw double bond O. And with that carbon only, Cl is attached. Clear? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Note down. सर IUPAC नंबर एक बार IUPAC आपको बता देते हैं कितने कार्बन एटम्स हैं। There are 3 carbon atoms ना, 1. So always when you are writing your answers, you put a habit of numbering the carbon. ऐसा आप लोग अपनी बुक में भी करो, पेपर में भी करना है, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो नंबरिंग किया ना कार्बन को, तो हमें समझ में आता है कितना कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रो। 3 कार्बन एटम प्रो। सारे कार्बन कार्बन के बीच में जितने भी बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स है, सारे सिंगल है, इसलिए प्रोपेन। तो 3 कार्बन एटम है इसलिए प्रो, और सारे सिंगल बॉन्ड्स है इसलिए प्रोपेन। बट फंक्शनल कौन सा है, असाइल क्लोराइड। तो उसका सफिक्स लगता है, असाइल क्लोराइड का सफिक्स क्या है, OYL क्लोराइड, है ना। तो हमें क्या करना है, जो E है ना, उसको रिप्लेस करके सफिक्स शिफ्ट कर देना। तो OYL। अभी समझ में आ रहा है? यस सर, अंडरस्टूड। Very good. फर्स्ट वाला करो, फिर आप लोग मुझे सेकंड स्ट्रक्चर में कौन सा फंक्शन पे वो बताना है और कितने कार्बन है वो बताना है। पहले फर्स्ट वाला कंप्लीट करो, देन फॉर सेकंड वन। वेरी गुड हिताली पाटिल, वेरी गुड। लेट्स चेक। देखो C डबल बॉन्ड O NH2 है, दैट्स व्हाई इट इज एसिड अमाइड, या फिर मैंने बताया था आपको अमाइड लिखा तो भी चलेगा। क्या बात है मितांश, लेट अस सी मितांश आपका आंसर राइट आया था कि नहीं। मितांश थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक किया है, ठीक है। तो ये एसिड अमाइड। नाउ यू हैव टू, हाँ यस कल्पक, योर आंसर इज 101% राइट, वेरी गुड कल्पक, कर लो। बिल्कुल पता, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। सो 4 कार्बन मीन्स व्हाट, ब्यूटेन। हो गया, ब्यूटेन। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 मीन्स ब्यूटेन। अब इसका सफिक्स क्या है, अमाइड, दैट्स व्हाई योर E should be replaced by the word amide. ब्यूटेनोमाइन। Butanamide. Yes आर्यन, करेक्ट। आर्यन ब्यूटेन अमाइड लिखा आपने, इट इज अमाइड, अमाइड DE। स्पेलिंग में गड़बड़ मत करना। मितांश, गॉट योर मिस्टेक? वेरी गुड, यस सर। थैंक यू। नाउ लेट अस सी द बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन में सबसे पहले क्या करेंगे, कितने कार्बन एटम है हमारे चेन में, 4। तो 1 2 3 4। तो जहां पर पेन रखोगे आप वो 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 हो गया। अब फर्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड O एंड NH2।
डबल बॉन्ड O and NH2 आ गया। आपको ये ऐसा पसंद नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और फिर NH2, ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे भी दिखाओ, 4 कार्बन एटम होने चाहिए और फर्स्ट पे डबल बॉन्ड O NH2 होना चाहिए, ठीक है ना। चलो गो फॉर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, रूल्स अप्लाई करना है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विद द फंक्शनल ग्रुप, सर सर हम अपना सेकेंड स्ट्रक्चर किया है ना, सेकेंड बॉर्ड लाइन, हाँ उसमें ओ इधर ही आएगा। ये ना, हाँ क्योंकि आपको चेंज करना है 1 2 3 4, तो इधर भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। ये फर्स्ट कार्बन हो गया ना, फिर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, वन एंड द सेम, ठीक है ना। ओके, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको क्या ध्यान रखना है, ये C डबल बॉन्ड हो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे होना चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट कार्बन पे ना इधर, इसीलिए। गो फॉर दिस कार्बन चेन 1 2 3 4। सो अभी ये रह गया, इसको नंबर नहीं मिला, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूट, इसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और फंक्शनल कौन सा है हमारा, असाइल क्लोराइड। दिस इज आवर सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। सो नाउ गो फॉर द IUPAC नेम। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, हाँ हिताली उत्तर बरोबर है तुझं। सो 2 पे मिथाइल, पहले 2 मिथाइल दिया अपन ने ना। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 4 4 means what, butane, 4 means butane। now attach the suffix, e को रिप्लेस कर दो और suffix OYL क्लोराइड। मितांश मिस्टेक समझ में आ रहा है आपका, क्या मिस्टेक कर रहे हो आप, स्पेलिंग में गड़बड़ कर दिया था आपने। यस, कल्पक योर आंसर इज राइट, 2 methyl butanoyl chloride, 2 methyl butanoyl chloride। now bond line, तो पहले 4 कार्बन एटम्स है, सो 1 2 3 4, ओके। now फर्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O and then is Cl, first carbon पे C double bond O Cl, and on second carbon atom you have to drop methyl, so first second third and fourth, check your answers। क्या करेगा पैर में Okay, shall I clean the board? Have you copied everybody? sir 1 minute. Yes, sir. Yes, yes. Okay, I'll wait 1 minute. तो ऊपर ना क्लीन कर देना।
अभी थोड़ा सा हार्ड टॉपिक लेंगे, ईस्टर्स। स्पेशली हाईलाइट किया है बिकॉज इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन, दैट्स व्हाई। इसको ईस्टर्स कैसे लिखते हैं? आर सी ओ ओ आर डैश। डैश क्यों दिखाया? कि दो आर है ना, तो बोथ में भी सेम और डिफरेंट, दैट्स व्हाई आर डैश। आर डैश क्यों दिखाया है? दैट दिस अल्काइल ग्रुप may be different from this. So ये जो पीछे का R होता है वो हो जाता है अल्काइल, and the rest group is called as alkanoid. That's why the IUPAC pattern become alkyl alkanoid. Again I repeat, the group with the oxygen atom is alkyl, rest is alkanoid. So what? The alkyl group with oxygen atom is alkyl, and the alkyl group with carbon atom is alkanoid. ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। जो ऑक्सीजन एटम के साथ में हो जाएगा वो अल्काइल को अल्काइल ही बोलेंगे, बट जो अटैच विद द सी डबल बॉन्ड O ग्रुप या द सी एटम कार्बन के साथ में, उसे हम बोलेंगे अल्कानोइड। तो देखते कैसे करना है यूपीएससी नॉमेनक्लेचर। स्टॉप राइटिंग यूपीएम। CH3 C double bond O O CH2 CH3 CH3 C double bond O O CH3। तो अभी यहाँ पर भी CH3 यहाँ पर भी CH3 है ना, तो इसलिए मैंने बोला था बोथ कैन बी सेम और डिफरेंट। तो अभी इसमें से जो ऑक्सीजन एटम के साथ में है उसको मिथाइल लिखना, अल्काइल ग्रुप लिखना है। जो ऑक्सीजन एटम के साथ में है दैट शुड बी रिटन एज अल्काइल ग्रुप। इसका नाम CH का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। नाउ क्लोज दिस। इसका नाम लिख दिया ना, ये खत्म हो गया ना। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 1 and 2. Now how many carbons are there? 2 carbons. 2 कार्बन को इस पैटर्न में डालना है। So 2 कार्बन को इस पैटर्न में डालना है। We are familiar. 2 carbons are called as ethane. बराबर ना? 2 carbons are called as ethane. And the functional group is esters. So your E should be OH. So name becomes methyl ethanoate. समझ में आ रहा है? देखो एक दो स्ट्रक्चर्स करेंगे तो आएगा समझ में आपको। Come on, go for the structure. कसं करायचं बघा। हा जो ग्रुप आहे ना CH3, this is attached to the oxygen atom. This is attached to the oxygen atom. So this becomes your subsequent, मग त्याचं नाव आधी, तर तो झाला मिथाइल CH3. ध्रुवी और आन्सर इज राइट। हा झाला मिथाइल। आता याला बंद करायचं। आता किती कार्बन राहिले? 2 म्हणजे काय झालं? इथेन। 2 इथेन। याचं सफिक्स, ईस्टरचं सफिक्स काय असते? ओएच। गेलं मानसिंग?
सर रिपीट अगेन. हाँ, कैसे दिमाग में फिट करना है? जो O के साथ में होता है ग्रुप, O के साथ में ग्रुप होता है, नितांश आंसर इज राइट नाउ. जो O के साथ में ग्रुप होता है, दैट बिकम्स योर सब्स्टिट्यूएंट, उसका नाम अल्काइल हो जाएगा. तो O के साथ में CH3 है इधर, तो इसका अल्काइल के फॉर्म में नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल. उसको फिर बंद कर दो, खत्म हो गया. अभी गिनना है कितने कार्बन है. नाउ देयर आर 2 कार्बन एटम्स रिमेनिंग. So 2 is called as ethane. 2 carbon are called as ethane. And the functional group is ester. So OH. So methyl ethanoate. Alkyl alkanoate. So if I go here, the group with oxygen atom is again methyl. Correct? So I'll write down the first methyl का नाम. So methyl हो गया. Now how many carbons are there in the chain, main chain? 3. 3. 1, Propanoid. 3. Propanoid. Very good. 3 means what? Propane. And the suffix of ester is OA. Ethyl propanoid. Propanoid. Now cleared everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Today is Mansi Gaikwad's birthday. So wish you a happy birthday, Mansi. From myself and from the whole Shah Tutorials and Professors Academy team. सर Thank you, sir. Happy birthday, Mansi. सर इसका बॉन्ड लाइन कैसे करने का? Thank you. बॉन्ड बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ना पहले आईयूपीएसी बता देंगे आपको, समझ में आ जाएगा, तो फिर बॉन्ड लाइन इजी हो जाएगा. क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है ना, तो पहले हम आईयूपीएसी कर लेते हैं. बॉन्ड लाइन 2 मिनट लगेगा उसको. 1-2 स्ट्रक्चर्स और करते हैं, फिर इसका बॉन्ड लाइन. फिर से एक बार. 2 मिनट. Okay. This is इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. So go for the first structure. Which is your alkyl group? The first structure, which is your alkyl group? CH2 and CH3. Huh? H2 CH3. Very good. Ethyl. O के साथ वाला ग्रुप आपका alkyl group है. So this is your alkyl group. Ethyl. Very good. So this is called as ethyl. Excellent answer. Ethyl. हो गया? Now, इसलिए मैंने इसको बॉक्स किया. तो बॉक्स किया तो आपको समझ में आएगा कि ये आपका अल्काइल ग्रुप है. अब इसका काम खत्म हो गया. Now how many carbons are remaining? 1. 1. So one carbon is called as Methane. Methane. Ethanoate. and so is OA. So name becomes methyl ethanoate. Go for here. Come on. CH2 CH3. Ethyl. This is your alkyl group. Ethyl. 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 Ethyl propanoid. Very good. So सबको समझ में आया? सानिका मात्रे. Yes, sir. Okay. Now bond line. Shall I go for the bond line now? Are you all ready for the bond line?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड प्लीज विश मानसी ऑन अ पर्सनल नंबर. अभी यहाँ पर क्लास में डिस्टर्ब मत करो. हाँ, अभी कितने कार्बन है ध्यान से देखो ना. स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी. अभी 2 कार्बन है तो 1 2. लुक प्रॉपर्ली. देयर आर 2 कार्बन. सो 1 2. दिस कार्बन इज हैविंग सी डबल बॉन्ड O और वापस O. एक बार वापस कैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड O O इतना ही कर रहे पहले. तो C फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O और चेन में वापस O है. अब आगे क्या है CH3. तो CH3 बन गई. CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3. Clear? The pattern. How many carbons are there? 1 and 2. So 1 2. On the first carbon term, double bond O with the O. So double bond O with the O. And then is CH3. Clear, na? See, your all valencies are balanced. Oxygen की वैलेंसी 2. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कंप्लीट. मतलब आपका स्ट्रक्चर राइट है. चलो इसके लिए चलते हैं. ये दिखाता हूं. ऊपर का 2 आपको खुद से करना है, ट्राई करना है. ना how many carbons are there? 1 2 3. So 1 2 3. Okay, 1 2 3. On the first carbon atom, double bond O. बराबर है. First carbon atom, double bond O. Then again you are having O in the chain. उसके बाद CH3. ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो. फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन. फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O, फिर O and then CH3. क्लियर? देखो कैसे नंबरिंग चाहिए तो कर सकते हो. फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन. हो गया. डबल बॉन्ड O and then CH3. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. You'll do this and don't also go for these 2 structures. I'll give you 2 minutes. आया क्या? Okay, shall we move for the bond line? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So यहाँ पर H है, फिर C डबल बॉन्ड तो डायरेक्टली फर्स्ट कार्बन पर ही. तो कैसे करेंगे? यहाँ से शुरू करते हैं. 1 2 4 and then यहाँ पर H. Now to do C double bond O. C double bond O, then is O. फिर CH2 CH3. यहां पर आपको H दिखाना पड़ेगा. क्यों H दिखाना पड़ेगा? If you don't show H, it is understood is it CH3. CH3 होता है ना.
दैट्स व्हाई यहाँ पर H दिखाना पड़ेगा। तो ये H C डबल बॉन्ड O O, फिर ये CH2 and CH3. So your H should be shown in the structure. Clear? Yes. Because if you don't show H, it is understood कि ये CH3 होता है. That's why H should be shown. Next structure, CH3 double bond O O, CH2 CH3. सबको समझ में आया? Everybody has done it? Yes, sir. Done. Yes, sir. Very good. Now last topic is acid anhydride. हो गया यार। क्या हुआ? क्या बातें क्या हो रही हैं? Pattern is alkanoid anhydride. इसमें थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है। स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में बताया था आपको मैंने, अगर ये एसिड है तो इसका नाम होता है इथेनॉइक एसिड। CH3COOH is called as ethanoic acid. You are familiar with this? Now stop writing. Look here. CH3COOH. CH3COOH. Clear? Now. Water molecule निकालते हैं, so water is removed outside, and you get this CH3 C double bond O, CH3 C double bond O, and only one O is left, na? So one O. As I spoke earlier, that when you remove water molecule, it is called as anhydride. Anhydride. एनहाइड्राइड। ये कौन सा एसिड का था? ये इथेनॉइक का था, इसलिए इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा इथेनॉइक एनहाइड्राइड। अभी थोड़े से मन में क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे अराइज हो रहा है कि सर यहाँ पर दो और दो 4 कार्बन एटम है, तो आपने इथेनॉइक क्यों लिखा? ब्यूटेनॉइक होना चाहिए था। सर 2 इथेनॉइक एसिड लिया था ना। यस, बस वही मुझे समझाना था, इसलिए मैंने आपको पहले दिखाया। तो क्या हो गया कि दिस नेम वी हैव टू रिमेंबर वेरी वेल। रिमेंबर नहीं मतलब ध्यान रखना है कि एनहाइड्राइड में हमेशा डबल कार्बन होंगे, पर आपको उसका हाफ का ही नेम करना है, फिर बाकी तो डेरिवेटिव पार्ट है, इसलिए इथेनॉइक। तो एक और एग्जांपल बताते हैं, आपको समझ में आता है। CH3 CH2 C double bond O, CH3 CH2 C double bond O and O. Come on, can you give the name? Propanoic anhydride. Excellent, very good, very good. हम निकाल सकते हैं 1 2 3 कार्बन्स। This is just to balance, ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए। तो मेन चेन वही है ना, तो 3 कार्बन एटम वाला, इसलिए इसका नाम आएगा आईपीएसी Propanoic aldehyde. नहीं, एनहाइड्राइड। Anhydride. अच्छा, चाय का टाइम हो गया है, बराबर, इसमें नींद आ रही है ना। हम एनहाइड्राइड को एल्डिहाइड बोल रहे हैं, बराबर, चाय का टाइम हो गया। बस 1 मिनट और लूंगा मैं, फिर स्टॉप कर दूंगा। सर 50। हाँ, क्या हुआ? क्योंकि बॉन्ड लाइन दिखाना ना, इसीलिए। तो बॉन्ड लाइन कैसे करेंगे?
बॉन्ड लाइन के लिए पहले स्ट्रक्चर को समझना होगा आपको। सर चिराग सर ओनली 2 मिनट्स आई टेक, आई लेट स्टॉप। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो दिस स्ट्रक्चर कैन आल्सो बी डन दिस वे, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो आप बॉन्डिंग कर सकते हो। कैसे करना है? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O, फिर O, वापस कार्बन, डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। कैसे किया? वापस CH3 से स्टार्ट करेंगे, CH3, फिर डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर यहां पर डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका बॉन्ड लाइन भी आप घर पे प्रैक्टिस करके लाना, ठीक है? नोट डाउन दिस मच। सो स्टिल स्टूडेंट्स आर राइटिंग, एक्चुअली शायद you all are new to me and I am also new to you all। चिराग सर को पता है, वैसे ओल्ड स्टूडेंट्स कोई नहीं है यहाँ पर। तो मेरी लेक्चर का सिस्टम है कि जिसका बर्थडे होता है वो गाना गाता है। तो मानसी गायकवाड़, कैन यू सिंग 2 लाइन्स फॉर द क्लास? मानसी गायकवाड़। नो सर, अरे 2 लाइन फक्त। मुझे गाना नहीं। हाँ? नो सर। अरे विचार कर, फक्त 2 लाईन गायचं आहे, कोणी बघणार मला नाही येतच तुला. नाही सर गाणं. अरे व्हिडिओ ऑफ ठेव आणि गा 2 लाईन, मराठी पण चालेल. टिक टिक वाजते डोक्यात पण चालेल. ओके. टिक टिक वाजते डोक्यात, धडधड वाढते ठोक्यात. झालं सर. ठीक आहे, थँक यू. Okay students, we shall stop here. Yes, sir. Thank you. Bye bye. Tata. Take care. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye Hiren sir. Bye. Bye, everyone. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, students. Bye, sir. स्टूडेंट्स कल मॉर्निंग में लेक्चर होगा, सैटरडे और संडे 2 दिन. ओके ओके सर. टाइम. Okay, sir. ओके. बाय स्टूडेंट्स. बाय. बाय सर. थँक्यू. Bye, बाय sir. सर.